When is a parent born? When your world changes in a moment? Nani? Or when the moment is celebrated by all? When you start learning again? Or with a new role? Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. So good morning everyone. I am Sumit Agrawal on behalf of Cord Life. Welcomes to all of you on this webinar on pregnancy and diet pregnancy exercises during pregnancy. We welcome to all the would-be moms and the parents on this webinar. We are highly thankful to Dr. Monica Varwan to give us opportunity for organizing this such informative webinar. And we also welcome to Ms. Sonali Shivlani ma'am. She is India's leading pregnancy and postnatal expert and is an internationally certified pregnancy, lactation and child nutrition counselor. So in this entire session, we will be, Sonali ma'am will be focusing answering your questions, giving us insights on diet and exercises. Before handling over the session to Sonali ma'am, there would be a very short informatory session on stem cells banking. So around 5 to 10 minutes, we will discuss on the stem cells banking. Should you have any queries on stem cells banking, please post your questions in the question box, and definitely we will be answering all the questions. For more information, you also go on to our website called www.cordlifeindia.com. And you can also fix up a detailed presentation. You can book the presentation also there. So starting with the concept, जब भी कभी baby घर में आता है, तो definitely lot of happiness are there. बहुत सारी खुशियां बच्चे लेकर आते हैं अपने साथ साथ. क्या हम लोगों ने ये भी सोचा है कि बच्चे अपने साथ साथ संजीवनी भी लेकर आते हैं? Yes. They are born with the संजीवनी. ये संजीवनी है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. कुछ केस स्टडीज हैं, कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं. One is of baby Rayan. Baby Rayan was suffering from leukemia at a very early age of 3 years. Leukemia is a blood-related disorder, and despite the nationwide search of bone marrow stem cells, a suitable match was not found. पूरा कोशिश किया, a suitable match नहीं मिल रहा था. Fortunately, baby sister of Rayan was born during this critical time, and with the help of Cord Life, her stem cells were collected and preserved. और ये स्टेम सेल्स बेबी रेयान के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए गए. अनदर सक्सेस स्टोरी ऑफ जॉर्जिया कॉर्न बेबी हु वाज सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी, अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जहां उस बच्चे के खुद के स्टेम सेल्स उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए गए. सो अनदर स्टोरी ऑफ बेबी जस्टिन हु वाज सफरिंग फ्रॉम न्यूरोब्लास्टोमा, जहां पर उसके खुद के स्टेम सेल्स ही यूज किए गए ट्रीटमेंट के लिए. A very success story from India, Moinam Pal. The baby was diagnosed from thalassemia when he was
only 1.5 year old. Luckily, fortunately, बेबी सिस्टर थैलीसीमिया फ्री थी, जिनका स्टेम सेल्स कॉर्ड लाइफ के साथ प्रिजर्व किया गया, कलेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया गया एंड मोइनम के लिए थैलीसीमिया को ट्रीट करने के लिए उस सैंपल का यूज हुआ. सो दिस इज द रीजन हम इन स्टेम सेल्स को संजीवनी बोलते हैं, और ये संजीवनी खुद बेबी बर्थ के टाइम अपने साथ लेकर आते हैं. नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट the sample, understand the value of the Sanjeevani, and then we can utilize the sample for treating various multiple disorders. So ये सब चीजें देख के एक क्लियर क्वेश्चन दिमाग में आता है, ये सब है क्या, स्टेम सेल्स है क्या. तो कहते हैं ना कि जो भी प्रॉब्लम हमारे शरीर में हो रही है उनसे लड़ने का सोल्यूशन भी हमारे शरीर के अंदर ही है, एंड दैट इज द रीजन ये स्टेम सेल्स हमारे शरीर के अंदर से ही मिल रहे हैं. बेसिक डेफिनेशन, स्टेम सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, रीजनरेट करते हैं, वेरियस ऑर्गन्स के डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड हमारी इंटायर बॉडी का डेवलपमेंट भी इन्हीं स्टेम सेल से होकर बना है. जितने भी बॉडी में फंक्शंस हो रहे हैं ये दीज आर थ्रू स्टेम सेल्स ओनली, और इन स्टेम सेल्स का एक पोर्शन, एक पार्ट हमने लैब कॉर्ड लाइफ के साथ प्रिजर्व किया हुआ है. इन फ्यूचर कभी भी कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज होती है जिसका नॉर्मली ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, उनका ट्रीटमेंट हम इन स्टेम सेल से कर सकते हैं. नाउ ये कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, कैसे पूरा प्रोसेस होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी. यस, कॉर्ड लाइफ की एक टेक्निकल टीम अवेलेबल होती है हॉस्पिटल में जो इसका कॉर्ड ब्लड कलेक्शन करते हैं, एंड देन सैंपल को ट्रांसफर किया जाता है लेबोरेटरी में, एंड देन प्रिजर्वेशन होता है. टेक्निकली देखें तो दो प्रोडक्ट हम लोग ब्रॉडली प्रिजर्व कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर से ब्लड एंड अम्बिलिकल कॉर्ड इटसेल्फ. सो ब्लड से हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स वी कैन एक्सट्रैक्ट, एंड अम्बिलिकल कॉर्ड से वी कैन एक्सट्रैक्ट mesenchymal stem cells. There is one another cell line which is unique to cord life, that is epithelial stem cells. Harvesting the epithelial stem cells is unique with cord life because the patent in India is available with cord life only. So when we talk about such precious things like stem cells, a very important question comes of quality. कि quality क्या है, quality कैसी है, trust factor क्या है, ये सारी चीजें. We are for processing we are using the automated processing system AXP2 technology. This is the most advanced technology available. एंड कॉर्ड ब्लड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज किया जाएगा. कॉर्ड टिश्यू सेल्स को प्रोसेस करने के लिए वी आर यूजिंग सेल ऑप्टिमा टेक्नोलॉजी. वी डिस्कस ऑल्सो कि दिस इज द पेटेंटेड टेक्नोलॉजी एंड वी कैन हार्वेस्ट द एपिथेलियल सेल्स अलोंग विद द mesenchymal cells only. So this is the laboratory which is in Kolkata. ऑल इंडिया से जो भी सैंपल कलेक्ट होता है दैट गोज टू कोलकाता, वहीं प्रोसेस होकर वहीं इसका प्रिजर्वेशन कोलकाता में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है. सो वी आर दी लार्जेस्ट स्टेम सेल्स कंपनी इन एशिया पैसिफिक रीजन. 9 कंट्रीज में वी आर प्रेजेंट. ग्रुप हेडक्वार्टर इज इन सिंगापुर. So there is a trust factor. Yes, company is financially stable or not. So 2 stock exchanges में publicly listed company है. ट्रस्ट फैक्टर आता है बिकॉज हम लोग इंटरनेशनली acclaimed certifications and certifications कैरी कर रहे हैं. So we are American Association of Blood Bank accredited company and Singapore Stock Exchange में publicly listed company. So this is about a very short glimpse about the stem cells and the usage. A lot of discussions are pending जो आप अपना एक फ्री प्रेजेंटेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं. ऑन योर कन्वीनियंट टाइम वी विल बी प्रेजेंटिंग द entire concept, applications, usage and the various services which Cord Life offers. So we request you to please post your questions. In the end of the session we will be giving the answers on the stem cell banking also. And उसके साथ साथ we will request you कि आप अपनी एक this is a free presentation which you can take on your convenient time. So please book your presentation by going on the website और टोल फ्री नंबर पर आप कॉल करके इसको बुक कर सकते हैं. Thank you so much. Now I am handing over the session to Sonali ma'am. Sonali ma'am will be sharing all the
insights of the topic related to webinar. Sonali ma'am, over to you. Thank you so much. Hi everybody, very warm welcome. Thank you very much for joining us. आप इस morning Saturday है, आप हमारे साथ जुड़े हैं. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. अब हम इस टॉपिक पे शुरू होते हैं. आज की कॉन्वर्सेशन पॉइंट ये है कि हम प्रेगनेंसी के दौरान एक्सरसाइजेस एज वेल एज ब्रेस्ट फीडिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं. थोड़ा सा वेरी टॉपिक है, लगभग 1 आवर लगेगा, तो इसीलिए आप अपने आप को प्लीज कंफर्टेबल कर लीजिए. ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए आप लोग का जो माइक्रोफोन है उसको हमने म्यूट रखा हुआ है ताकि आप का जो साउंड है वो रिकॉर्डिंग वगैरह को डिस्टर्ब ना कर सके. बट ऑफ कोर्स आपके क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो आप अपने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्वेश्चन बॉक्स में डाल दीजिए और जैसे ही ये सेशन खत्म होने पे होगा ये क्वेश्चंस आंसर करके हम इस टॉपिक को बंद करेंगे, राइट. एंड जैसे सुमित ने आपके साथ शेयर किया, अगर आप स्टेम सेल्स के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी स्टेम बॉक्स में डाल दीजिए. सुमित विल बी देयर टू आंसर देम एट द एंड, राइट. तो अब हम शुरू करते हैं. वी आर गेटिंग रेडी टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एक्सरसाइजेस एंड देन वी विल टॉक अ लिटिल बिट अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग. ऑलराइट, सो जैसे सुमित ने आपके साथ शेयर किया, मेरा नाम सोनाली है एंड आई एम अ प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड चाइल्ड न्यूट्रिशन काउंसलर. It's been 17 years that I've been practicing in this space and I've worked with more than 40,000 families. Pandemic के दौरान ये एक अच्छा मीडियम बन गया है कि we can interact with so many parents all over India. And thank you to Cord Life for arranging this kind of a platform. And thank you to Dr. Monica. She has given us the opportunity to speak to all her patients, right? So thank you and let's get started. So prenatal exercise यानी कि pregnancy exercises, ये होती है जो exercises हम pregnancy के दौरान करते हैं. लेकिन क्या ये अलग है, क्या ये कुछ different है, क्या मुझे इसमें कुछ special care लेना है, क्या ये मुझे allowed है, ये बहुत सारे questions आपके दिमाग में होंगे. इसके अलावा आई थिंक आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या ये मेरे लिए सेफ है, क्या मैं कोई गलती ना कर दूं, क्या ये मेरे बेबी को अफेक्ट करेगा. तो ये जो सारे सवाल है ये हम अभी कोशिश करेंगे आपके आंसर करने के लिए और पिक्चर्स वगैरह के द्वारा आपको वी विल शो यू सम ऑफ द सेफ एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी. अब एक्सरसाइज हम सब इसके बारे में सोचते हैं क्योंकि वी हैव हर्ड, राइट. एक्सरसाइज तो बहुत ही बेनिफिशियल है बहुत सारी चीजों के लिए. अगर आप प्रेग्नेंट ना भी हैं तो इट्स गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, वेट लॉस, आपकी मसल टोन बनी रहती है, हेल्दी रहते हो आप, बोन डेंसिटी बनी रहती है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेस इवन टू अ नॉन प्रेग्नेंट पर्सन. तो प्रेगनेंसी के दौरान तो डेफिनेटली एक्सरसाइजेस के बहुत बेनिफिट्स हैं. हमने सबने सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान पीठ में दर्द होता है, एसिडिटी होती है, लेग्स में क्रैम्प्स होते हैं, ये इतने सारे डिस्कम्फर्ट्स होते हैं. तो ये जो होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए प्रेगनेंसी एक्सरसाइज कैन बी वेरी बेनिफिशियल. इसके अलावा एक्सरसाइज इज एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारे ब्लड में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं. एंडोर्फिन्स आर कॉल्ड हैप्पी हार्मोन्स. तो हमारा मूड सही रहता है एंड एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं. मैं मानती हूँ कि इन द बिगनिंग जब आप शुरू करेंगे तो इट विल बी अ लिटिल टायरिंग. So you might feel कि oh my God रात को बहुत थकावट हो रही है, which is normal. But लेकिन जब आप ये कंटिन्यू करेंगे कुछ दिनों में आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे एनर्जी लेवल्स अब बढ़ गए हैं. क्योंकि प्रेगनेंसी में सुस्ती यानी कि नींद आना, लेथार्जिक फील होना इज वेरी कॉमन. इसके अलावा नींद अच्छी आती है. I conduct exercise classes for mothers and मुझे आम बोला जाता है कि मैम आप रोज क्यों नहीं करवाते हो क्लासेस, बिकॉज अगर आप रोज करवाओगे तो आपको रोज नींद अच्छी आएगी. अब ये जो है वो मेरा फेवरेट है, एक्सेस वेट गेन. क्योंकि इट्स नॉट अबाउट योर लुक्स. मुझे इसकी चिंता नहीं है कि यू आर गोइंग टू लुक फैट एंड हैवी एंड ऑल ऑफ दैट. दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम. माई प्रॉब्लम इज दैट एक्सेस वेट गेन होता है तो हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है एंड इससे जो प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ जाते हैं. लेबर और डिलीवरी जो आपकी है वो ज्यादा स्मूथ हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है.
हम सब जानते हैं कि अगर एग्जाम देना है तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, तो एक्सरसाइज आपके लेबर और डिलीवरी जो एग्जाम है उसकी पढ़ाई है, which means कि it is very very essential and important. इसके अलावा जो रिकवरी है पोस्ट डिलीवरी, ये आपकी बहुत जल्द हो जाती है. इट इज अ स्मूदर फास्टर रिकवरी. डिलीवरी के बाद आप आराम नहीं कर सकते हो, मतलब बोलते हैं कि यू शुड रेस्ट, आई अंडरस्टैंड दैट, बट लेकिन बेबी को संभाले कि आराम करें, राइट? और बेबी को संभालना तो एक फुल टाइम जॉब है. तो इस हिसाब से बहुत ही एसेंशियल है कि आप अपने ध्यान रखें ताकि आपकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाए. अब कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा आस्क योर डॉक्टर. ये बहुत जरूरी है, बिकॉज मेरे लिए तो बोलना यहाँ आसान है कि एक्सरसाइज इज गॉट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, बट इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा होता ये है कि यू नीड टू नो कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो सके. तो इसीलिए हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही स्टार्ट करें. And it is not only कि you should ask the doctor once, like 4th month में पूछ लिया और उसके बाद दोबारा कभी नहीं पूछा. Don't do that. Always ask your doctor at every visit. So अगर आप 5th month में जाते हो, 6th month में जाते हो, उस टाइम पे आपकी pregnancy condition क्या है, you should always again confirm with your doctor कि ma'am, sir, I am doing exercises. Is it all right for my pregnancy? अब एक्सरसाइज के बारे में बात करने से पहले या एक्सरसाइज के बारे में बात करते वक्त पोस्चर के बारे में अगर बात ना करें तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी. इट इज एब्सोल्युटली नॉट फेयर. सो एक्सरसाइज के लिए पहले तो आपका पोस्चर बिल्कुल सही होना चाहिए. सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स पोस्चर की वजह से होते हैं. सो पहला होता है आपका सिटिंग पोस्चर. अगर आप ये दो पिक्चर्स देखेंगे, जो लेफ्ट में लेडी है वो बिल्कुल बैक सपोर्ट नहीं ले रही है, स्लाउच कर रही है. तो इसको लोअर बैक, अपर बैक वगैरह में प्रॉब्लम्स ज्यादा होंगे, पेन ज्यादा होगा, डिस्कम्फर्ट ज्यादा होगा. और जो लेडी राइट में बैठी है उसने अपना पूरा बैक सपोर्ट लिया है. शी इज सिटिंग टॉल एंड इरेक्ट, एंड इससे उसके लोअर बैक को और अपर बैक को फुल सपोर्ट है. सो शी विल हैव लेसर बैक पेन प्रॉब्लम. सो आप जहां पर भी बैठते हो, मेक श्योर दैट यू हैव गुड बैक सपोर्ट. एक और चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आपके पैर. When you sit, अगर आप पालती मार के फोल्ड करके legs, if you are sitting on the couch or the bed, it is okay. But if you are sitting on a chair and your feet are down, your feet should be touching the floor flat. They should not be dangling, because उससे भी आपके pelvis bones पे pressure पड़ सकता है. अब आते हैं standing posture पे. अब खड़े होते वक्त भी समझने की बात है, right? कि मुझे अभी खड़ा होना भी सीखना पड़ेगा. Yes, आपको खड़ा होना भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में देयर आर सम फिजियोलॉजिकल चेंजेस जिससे आपका पोस्चर बिगड़ जाता है. अब ये क्या है? पहला, जब आप खड़े रहते हो आपका नॉर्मल भी एक बैक में छोटा सा कर्वेचर होता है, पर जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो एब्डोमेन में वेट बढ़ना शुरू होती है. जब यहाँ पे वेट गेन हो जाती है तो आपका जो ये बैक का कर्वेचर है वो इस तरह हो जाता है, राइट? एक और चीज होती है दैट आपके जो ब्रेस्ट्स है उसमें भी वेट इंक्रीज हो रहा है. तो अब जब ये होता है तो आपके शोल्डर्स इस तरह से फॉरवर्ड हंच होते हैं, एंड आपका जो पूरा बैक का पोजीशन है वो कुछ इस तरह हो जाता है, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन योर बैक. तो जब भी आप स्टैंड करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने आप को एकदम इरेक्ट पकड़े. आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा पीछे पुश कर दीजिए और अपने चेस्ट को थोड़ा सा पुल आउट करना है आपको. So pregnancy में sitting and standing posture can make a world of difference to your back problems. अब शुरू करते हैं थोड़े से एक्सरसाइजेस. अगेन याद करा देती हूँ कि you need to make sure कि आप अपने डॉक्टर से चेक करें. अभी आप घर पर हैं, आप 2-3 काउंट अगर मेरे साथ ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड, बिकॉज आपके लिए क्वेश्चंस पूछना आसान हो जाएगा. तो पहले है नेक रोटेशंस. अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ कि आपको जो भी whichever pregnancy exercises you do, you must do it slowly. Don't be in a hurry, right? So अगर मैं कोई भी मूवमेंट कर रही हूँ उसको जल्दी जल्दी नहीं करना, एकदम स्लोली डिलिबरेटली करना है, क्योंकि इससे 2 फायदे होते हैं. एक तो स्ट्रेच सही मिलता है, और दूसरा आपका जो अगर कोई इंजरी का चांस है तो वो बहुत ही कम हो जाता है, राइट? सो ट्राई करते हैं. स्लोली ड्रॉप योर चिन टू योर चेस्ट.
left ear to left shoulder, back of the head to the back, right ear to right shoulder, and chin to chest. And come back to your starting position. Okay? फिर हम इसको reverse कर लेते हैं. Right ear to right shoulder, back of the head to the back, left ear to left shoulder, and chin to chest. And again upright. दूसरा होता है wrist rotations. And I'm sure आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मैं ये कितनी बार करूं दिन में. तो ये जो rotations होते हैं आपको at least 8 to 10 times और slowly करने हैं. इससे जो benefit है वो आपका circulation के लिए है. स्पेशली जो मदर्स हैं जो ज्यादा कंप्यूटर वगैरह पे काम करते हैं उनको इस तरह से रिस्ट रोटेशंस करने चाहिए. सो पहले 1 2 3 and 4 and फिर रिवर्स 1 2 3 and 4. राइट? जो सेम एक्सरसाइज मैंने रिस्ट के लिए दिखाई, वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग फॉर योर फीट एंड योर एंकल्स. सो पहले जहां पर भी आप बैठे हैं आप अपने पैर इस तरह से स्ट्रेच और फिर फ्लेक्स कर दीजिए. तो ये आपको आपके काव्स में फील होगा, लेग्स के काव्स में. राइट? पॉइंट एंड फ्लेक्स, पॉइंट एंड फ्लेक्स. अब हम इसको रोटेट करेंगे 1 and 2 3 and 4 and अब इसको आप रिवर्स कर दीजिए. सो ये आपके एंकल्स पे आपको फील हो रहा है. 2 3 and 4. अब एक एक्सरसाइज करते हैं which is very very helpful for your your labor preparation. तो इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाइज. आप जहां पर भी बैठे हैं आप अपने पैर इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए जैसे फोटोग्राफ में दिखाया गया है. ब्रिंग योर फीट टुगेदर. जितना आप अपने पेल्विस के क्लोज अपने पैर ला सकते हैं दैट इज वेरी हेल्पफुल. और आपके जो नीज हैं उनको आपको जितना नीचे आप डाल सकते हैं पुश कर सकते हैं. सो आपके इनर थाई में द स्ट्रेच विल बी फेल्ट इन योर इनर थाइज. सो अब आपने जब ये पोजिशन संभाल लिया है तो आपको इसको फ्लैप अप एंड डाउन, 2 and down, 3 and down, 4 and down. And plus आप इसको इस तरह से भी rapid flapping is possible. एक एक्सरसाइज आपके बैक के लिए जो बहुत ही हेल्पफुल है, इसको हम बोलते हैं कैट एंड कैमल पोज. कई बुक्स में इसको कैट एंड काउ पोज भी बुलाते हैं. तो पहले आप अपने ऑल फोर्स पे आ जाएंगे. ये एक्सरसाइज करने के लिए आई वुड रेकमेंड कि यू शुड यूज अ नॉन स्लिप मैट. आप बेड पे ना करें बिकॉज इससे आपकी स्टेबिलिटी सही नहीं होगी. सो आप ऑल फोर्स पे हैं. आप स्लोली अपने बैक को आर्च करिए तो लोअर बैक पे अच्छा से स्ट्रेच हो जाएगा. एंड फिर जो पिक्चर ऑन द राइट है आप अपने बैक को राउंड आउट कर दीजिए लाइक अ कैमल हम्प. सो दिस स्ट्रेच विल बिकम गुड फॉर योर अपर बैक. अब ये करीबन 12-16 इस तरह आपको करने हैं. हर स्ट्रेच को 2 to 3 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है. एंड इसमें कभी कभी एब्डोमेन में थोड़ा स्ट्रेच फील होता है. इफ इट इज अनकंफर्टेबल देन स्टॉप, बट इफ इट इज लाइक जस्ट अ स्ट्रेच इट इज कंप्लीटली ऑल राइट. ये एक और एक्सरसाइज है विच इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बैक. सो आप अगेन उसी मैट पे इस तरह से लेट कर अपने पैरों को, यू कीप योर फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर एंड द नीज आर पॉइंटिंग टू द सीलिंग. और फिर स्लोली आपको अपने बटक्स को रेज करना है जितना आप हाई ले जा सकते हैं. यू कैन टेक सपोर्ट विथ योर हैंड्स. तो अब आपकी जो टॉर्सो की वेट है वो आपके अपर बॉडी और आपके पैरों पर है. एंड अगेन यू विल होल्ड दिस फॉर अबाउट 3 seconds and at least 10, 12, 16 times on a daily basis. This is very good for your lower back strengthening. Leg raises एक और एक्सरसाइज है which is very excellent for your labor preparation. So आप उसी मैट पे या आप ये बेड पर भी कर सकते हैं if your bed mattress is firm. So आप साइड पर लेट जाइए, अपने लोअर लेग को फोल्ड कर दीजिए एंड स्लोली अपर लेग को फुल 90 degrees. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको फुल 90 degrees पे खोल रहे हैं. आप कम काउंट्स करें बेटर है, लेकिन क्या होता है कि आप हाफ करते हैं, जैसे आप 40 degrees 50 degrees पर तक लेके जाते हैं.
so then that is not going to give you the benefit for labor. तो अगर आपको थकावट महसूस हो रही है, so you rest and you again continue after some time and you do full 90 degrees, right? So it's up and it's down, up and down. जब आप नीचे आते हो, so it is important कि आप अपने पैर इस तरह पकड़ा मत दो, like don't completely rest your leg. Take it up and keep it little down like this. There should be gap. It should not be completely rested. And then again take it down, right? So इस तरह से you can start with about 8 to 12 counts, but ideally you should be doing at least 4 to 5 sets. So 32 to 40 counts per leg is what is recommended. अब ये होता है सबका फेवरेट स्क्वाट्स, राइट? सब लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पे झाड़ू कटका करना चाहिए, खास करके इन द 9th मंथ. इससे आपके डिलीवरी स्मूथ हो जाएगी. सो 9th मंथ के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आपको डॉक्टर परमिशन देता है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ झाड़ू कटका करना है आपको, बट यू शुड स्टार्ट डूइंग सम स्क्वाट्स, राइट? तो आप कोई भी फर्म चीज, आप वॉल, चेयर, काउच, जो भी मतलब डामाडोल ना हो, फर्म हो, आपको सपोर्ट कर सके. क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग वेट इन द एब्डोमेन, आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है. एंड इसकी वजह से आपका इम्बैलेंस होता है. यू माइट फॉल डाउन ऑल्सो, राइट? सो इसीलिए यू शुड टेक द चेयर, टेक गुड सपोर्ट विद द चेयर एंड अपने लेग्स को इस तरह से वाइड करके बैक को आपको टॉल एंड स्ट्रेट रखना है एंड स्लोली कम डाउन टिल योर थाइज आर पैरेलल टू द ग्राउंड एंड देन गो अप. अगेन सेम थिंग, एकदम फुल अप नहीं जाना है, मतलब ऑलमोस्ट 90% जाकर फिर आपको नीचे आना है. तो इस तरह से आप जब स्टार्ट करते हो तो यू डू अबाउट 8 to 10 काउंट्स एवरी डे, बट लेकिन माय रिकमेंडेशन इज एटलीस्ट 6 सेट्स. सो एक सेट में 8 काउंट्स होते हैं, तो 48 काउंट्स तो कम से कम आपको रोज करने चाहिए. डीप ब्रीदिंग इज समथिंग विच इज हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि इससे आपकी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, इसके आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके बेबी को भी ऑक्सीजन अच्छे से मिलता है एंड लेबर की आपकी तैयारी हो जाती है. तो आप एक हाथ अपने टमी पे रख दीजिए और एक लंबी सांस, एक डीप ब्रेथ इन इस तरह से, और फिर एक्सहेल, नाक से ही अंदर, नाक से ही बाहर. अगर आपको डिस्कम्फर्ट होता है तो आप एक्सहेल थ्रू द माउथ कर सकते हैं. सो इनहेल, एक्सहेल एंड इतनी लंबी डीप ब्रेथ लेनी है कि आपका पूरा जो एब्डोमेन है, इसीलिए मैंने एक हाथ आपको बोला एब्डोमेन पे रखने के लिए, ये पूरा स्वेल होना चाहिए, राइट? सो इनहेल, एक्सहेल, कहीं पर भी ब्रेथ होल्ड नहीं करनी, लेकिन आप जितना डीप ब्रीदिंग कर सकते हो 30-40 काउंट्स रोज, प्रेफरेबली नॉन एयर कंडीशनड एनवायरनमेंट में आपको करने चाहिए. अब होते हैं कीगल्स. अब कीगल्स एक ऐसी चीज है जो हम दिखा नहीं सकते, राइट? डेमोन्स्ट्रेशन हो नहीं सकती इसकी, बिकॉज कीगल्स आपके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, ये आपकी वेजाइनल एक्सरसाइजेस है. आपको इमेजिन ये करना है कि आपको टॉयलेट जाना है और आपको हम जाने नहीं दे रहे. सो व्हाट विल यू डू? You will hold your urine. हम स्कूल में है, टीचर गुस्सा कर रही है, right? So हम यूरिन को इस तरह से होल्ड करते हैं. So those are the muscles that you have to work. You will hold and you will release. You will hold and you will release, right? ऐसे आपको hold और release बहुत ही regularly करना है, right? तो this जो exercise है ये आपके लिए बहुत ही helpful रहेगी, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी के दौरान आपको जो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस वगैरह होता है, इट विल प्रिवेंट दैट. इट विल हेल्प यू टू हैव लेस यूरिन लीकेज प्रॉब्लम्स. डिलीवरी बिकम्स बेटर एंड पोस्ट डिलीवरी वेजाइनल मसल्स की रिकवरी इज मच बेटर. सो ये चीजों को आपको ध्यान रखते हुए दिन में कम से कम 60, 70, 80 कीगल्स करने हैं. जरूरी नहीं है एक साथ, आप 10-15 करके एटलीस्ट 5-6 टाइम्स दिन में इनको स्प्रेड आउट कर सकते हैं. सो ये हो गए जो मैंने आपको बताया कि आपके जो मसल्स है जो यूज हो रहे हैं. जो मैंने आपको बोला आपका पेल्विक फ्लोर है, तो ये जो पूरा मसल है, ये जो रेड में दिख रहा है आपको, एक हैमॉक के जैसे है. तो हम इसको इस तरह से स्क्वीज और रिलीज कर रहे हैं, इस तरह से स्क्वीज और रिलीज कर रहे हैं. अब ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइजेस. अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में. एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज समथिंग विच इज
सबसे कम टॉपिक हो जाता है फॉर प्रेग्नेंट मदर्स. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि डॉक्टर मोनिका ने सजेस्ट किया कि ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी बात करनी चाहिए, बिकॉज वी हैव रियलाइज्ड कि क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एवरीवन इज वरीड, क्या खाएं, क्या एक्सरसाइज करें, लेबर कैसे मैनेज करें, हाँ बाद में देखेंगे, यहाँ तक कि बेबी की शॉपिंग के बारे में बातें हो जाती है, लेकिन एक बहुत जरूरी चीज जैसे ब्रेस्ट फीडिंग, इसके बारे में कोई बात नहीं करता. एंड प्रॉब्लम ये होती है कि डिलीवरी होते ही, ट्रस्ट मी, डिलीवरी होते ही आपको बेबी को फीड करना है, और अगर आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है एंड यू डोंट नो द बेसिक फैक्ट्स और वेयर द कॉमन प्रॉब्लम्स आर, तो आपके बहुत सारे मिस्टेक्स हो जाते हैं. और कई बार ये जो मिस्टेक्स होते हैं उनको रेक्टिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. उसमें बहुत मेहनत लगती है फॉर बोथ द बेबी एंड द मदर. फॉर अस इट इज ओके, वी आर काउंसलर्स, हम तो एडवाइस दे के बता करके पीछे हट जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे, बट करना आपको है. इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना, टू नो अबाउट इट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब पहला क्वेश्चन होता है कि क्या ब्रेस्ट मिल्क मुझे देना है, इज इट द राइट चॉइस. अगर आप ये पिक्चर देखेंगे तो मैंने एक बहुत डिलिबरेटली ये पिक्चर सिलेक्ट किया है. इट इज अ गोल्डन येलो कलर. सो ब्रेस्ट मिल्क को हम बोलते हैं लिक्विड गोल्ड. इट इज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी, at least in the first few months of life. And it is not only beneficial for the baby, but it is also extremely beneficial for the mother. अब ब्रेस्ट फीडिंग के इतने एडवांटेजेस हैं, राइट? जैसे कि अगर हम मदर की बात करते हैं, इट हेल्प्स द यूट्रस टू श्रिंक. तो आपका जो टमी है, आपका वेस्ट लाइन है, वो बहुत जल्दी पतला हो जाएगा. सेकेंड, आपका वेट लॉस सही से हो जाएगा. हर ब्रेस्ट फीडिंग सेशन में अराउंड 20 to 25 कैलोरीज बर्न होते हैं. एंड इनिशियली यू हैव टू फीड द बेबी 10-12 टाइम्स अ डे. सो आप इमेजिन कर सकते हो आपके कितने कैलोरी बर्न हो रहे हैं, और जो प्रेगनेंसी वेट है वो कितना जल्दी उतर सकता है. तीसरी चीज, आपके जो कैंसर्स वगैरह हैं, इससे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा. बहुत ही कन्वीनियंट है. मैं तो जनरली पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि ब्रेस्ट मिल्क इकलौता एक ऐसा खाना है, ऐसा कोई और खाना नहीं है दुनिया में, विच इज अवेलेबल एट द राइट टाइम, द राइट प्लेस, द राइट क्वांटिटी एंड द राइट टेम्परेचर. आप मुझे ऐसा कोई और खाना लाके दिखा दो, आई विल रियली बी हैट्स ऑफ टू यू, राइट? सो ब्रेस्ट मिल्क हैज गॉट सो मेनी एडवांटेजेस, स्पेशली फॉर द मदर. आपको रात में उठना नहीं पड़ता, उठना तो पड़ता है, बट लेकिन यू डोंट हैव टू गेट अप फ्रॉम योर बेड, गो टू द किचन, मेक द फॉर्मूला एंड देन गिव इट टू द बेबी. बट अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो रात में अगर बेबी उठते हैं तो आपको सिर्फ उसको अपने पास लाके लैच करवा के अंधेरे में ही आपका काम हो जाता है. सो बहुत ही कन्वीनियंट है, एकदम सेफ है, हाइजीनिक है, और बेबी के लिए तो इट इज द राइट फूड, बिकॉज इससे इन्फेक्शन प्रोटेक्शन हो जाता है, एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं, एलर्जीज कम होती है, IQ डेवलपमेंट बेटर होती है, उनका वेट वगैरह जो है वो सही गेन होता है, बॉन्डिंग सही हो जाती है. इतना टाइम आपके साथ बेबी स्पेंड करते हैं, तो इट इज वेरी वेरी बेनिफिशियल ओवरऑल. अब इससे ज्यादा तो खैर मैंने 101 एडवांटेजेस लिखे हैं, अगर मैं वही बोलने बैठूंगी तो वी विल बी हियर for the entire session only talking about the advantages of breastfeeding. So let us assume that breastfeeding is liquid gold. Breast milk is something which has lot of advantages for both the mother and the child. तो इसको एक सही कोशिश, making sure that we give it the best possible shot is very very important. पहली चीज, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो आई वुड आस्क यू टू कीप इन माइंड एंड नॉट फॉरगेट इट. इसको आप बोलते ना, गांठ बांध लीजिए बिल्कुल. जैसे ही बेबी का जन्म होता है, गेट स्टार्टेड विद ब्रेस्ट फीडिंग, डू नॉट डिले इट. बिकॉज क्या होता है कि हम, अच्छा अभी सब लोग हैं, पहले डॉक्टर्स चले जाएं, पहले मदर इन लॉ बैठी है, ससुर जी बैठे हैं, सब चले जाएं. नहीं, फर्स्ट बेबी, बिकॉज ये जो सारे लोग हैं, they are going to be there. They have been there for 9 months. Baby has waited for you to meet you for 9 months. आपने इतना वेट किया है, तो पहले बेबी से मिलना बहुत जरूरी है. जितना आप जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग से शुरू होते हैं, इट इज बेटर. दूसरी चीज जो यहाँ पे होती है, क्यों बोलते हैं इतना जल्दी, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है, बेबी बहुत ही डरा हुआ होता है. इट्स अ कंप्लीटली न्यू एनवायरनमेंट,
राइट? तो बेबी इज स्कैर्ड एंड उस डर में बेबी वांट्स कंफर्ट. So when the mother holds the baby close to the chest, the baby feels the mother's warmth, gets her smell, hears her heartbeat. इससे उसको बहुत comfort मिलता है. And that is what is the biggest advantage of getting the baby started. पहले 1-1.5 घंटे के बाद बेबी बहुत थक जाते हैं, तो वो सो जाते हैं. And then they can sleep and they can be really in a very sleepy state for many hours, sometimes 6-8 hours also. So वो जो पूरा initiation of breastfeeding है वो delay हो जाता है. So get started with breastfeeding straight away as soon as you deliver. Don't worry about आपके सामने कौन है, सबको भगा दो. If you can't breastfeed in front of people, be rude and tell people that please go. I need to feed my baby. दूसरा होता है बेबी का लैच. अब जब हम बोलते हैं बेबी शुड बी लैच्ड वेल, इट इज इम्पोर्टेंट कि बेबी का मुंह बिल्कुल अच्छे से खुला हो. एंड जो आपका एरियोला है, निप्पल के पीछे जो काला हिस्सा है, उसका एक मेजर पोर्शन बेबी के माउथ के अंदर होना चाहिए. ये हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत सारी नलियां होती हैं और ये सारी नलियां इस एरियोला, इस काले हिस्से के पीछे आके कलेक्ट होती हैं. अगर बेबी सिर्फ निप्पल पे लैच करते हैं तो बेबी डज नॉट गेट एनीथिंग. इफ द बेबी प्रेसेस ऑन द एरियोला, तभी ही जाके बेबी को मिल्क मुंह में जाएगा. सो इसके लिए लैच बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका एक और फायदा है कि आपको पेन भी कम होगा. यू विल फील नो पेन. ब्रेस्टफीडिंग इज सपोज्ड टू बी रिलैक्सिंग, इट इज नॉट सपोज्ड टू बी पेनफुल. तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको बिल्कुल कंफर्टेबल बैठना चाहिए. यू शुड बी कंफर्टेबल. मैंने ऑलरेडी बोला आप 10 से 12 बार फीड करोगे तो इतने टाइम अगर आपको फीड करना है, कभी कभी बेबी 10 मिनट्स लगाते हैं, कभी 45 मिनट्स भी लगाते हैं. सो अगर आप इतना टाइम, इफ यू आर गोइंग टू बी सिटिंग इन वन पोजिशन, you need to be comfortable. So pillows and back support and arm support and shoulder support, में आपको जो support लेना है अपने comfort के लिए please ले लीजिए. एक और important चीज ये है कि आपको बेबी को often feed करना है. मतलब जितना आप ज्यादा feed करोगे उतना ज्यादा दूध बनता है. तो क्या हो जाता है कि अगर हम फॉर्मूला देना शुरू करते हैं तो बॉडी को आदत ही नहीं पड़ती कि मुझे मिल्क बनाना है. और बाद में भी अगर हम फीड स्किप करते हैं, क्योंकि कई बार मदर्स बोलती है रात को मैं ना एक बॉटल दे देती हूँ, ऐसा नहीं. बिकॉज अगर आप एक आध फीड स्किप करते हैं रोज तो आपकी बॉडी, योर बॉडी विल मेक दैट मच लेस मिल्क एवरी डे. सो इसीलिए इट इज इम्पोर्टेंट कि आप ये बात भी ध्यान रखें कि कभी भी आपको ऐसे लगे कि आई एम गेटिंग लेस मिल्क, इट इज नॉट योर बॉडी, यू हैव नॉट बीन फीडिंग ऑफन. So, जितना ज्यादा स्टिम्युलेशन होगा उतना ज्यादा दूध बनेगा. शुरू में बेबी का टमी बहुत ही छोटा होता है. पहले दिन अगर हम बेबी के टमी का अल्ट्रासाउंड देखेंगे तो वो बिल्कुल एक मार्बल के मुताबिक होता है. इट्स एज स्मॉल एज अ मार्बल. तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड, राइट, कि बेबी का स्टमक इतना छोटा है. तो मिल्क प्रोडक्शन अगर कुछ बूंदे हो रहा है तो इट इज परफेक्टली ऑल राइट. इट इज नॉट कि आपका delivery हुआ and you are going to start making fountains of milk. It doesn't work like that, right? So baby's stomach size is very small and इसीलिए भी babies need to eat often. क्योंकि उनका पेट छोटा है, वो कम लेते हैं तो पेट फिर खाली भी हो जाता है और फिर दोबारा से उनको फीड करने की जरूरत पड़ती है. कॉमन चीजें जो ब्रेस्ट के साथ होती हैं, पहला होता है इंगॉर्जमेंट. अब पहले दिन कोई मिल्क नहीं है, हल्का हल्का बूंदे बूंदे आ रही है, दूसरे दिन थोड़ी ज्यादा बूंदे आ रही है, बट तीसरे दिन ब्रेस्ट बिल्कुल हैवी हो जाते हैं क्योंकि अब इतना फीड किया, लैच करवाया, स्टिम्युलेशन करवाया तो बॉडी ने बहुत सारा मिल्क बनाना शुरू कर दिया. ये नॉर्मल है, इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खाली इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और कभी कभी बेबी को लैच करने में भी डिफिकल्टी होती है. अब आप इसके लिए क्या करेंगे? आप गर्म पानी ले लीजिए, टेक अ नाइस टॉवल, सॉफ्ट नैपकिन. आप उस गर्म पानी में डिप करके अपने ब्रेस्ट को वो गर्म सेक दे दीजिए. उसके बाद हल्के हाथ से ब्रेस्ट का मसाज कर दीजिए. थोड़ा सा आप मिल्क एक्सप्रेस करिए और फिर बेबी को लैच करवा दीजिए, राइट. कई बार मदर्स ये भी कंप्लेन करती है कि मैं फीड कर रही हूँ तो दूसरे साइड से मिल्क लीक हो रहा, बेबी इज स्लीपिंग, माय ब्रेस्ट इज लीकिंग, इट्स सो एम्बैरेसिंग.
इट्स नॉर्मल, ये होता है और किसी किसी को नहीं भी होता है, तो वरी करने की जरूरत नहीं है। ब्रेस्ट पैड्स मिलते हैं, आप घर में भी बना सकते हैं, ये आप यूज कर सकते हैं ताकि आपको एम्बैरेसमेंट ना हो। लेकिन एक बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके ब्रेस्ट पैड्स को आपको फ्रीक्वेंटली बार बार चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो डैम्प हो जाते हैं एंड फिर उसमें इंफेक्शन ब्लीड हो सकता है। अब्डोमेन में क्रैम्प्स होते हैं क्योंकि आपका यूट्रस श्रिंक हो रहा है, तो एक्चुअली ये तो गुड न्यूज है, राइट? तो अगर आपको हल्की हल्की करवटें पड़ रही है एब्डोमेन में, जैसे पीरियड क्रैम्प्स, तो ये प्रीटी नॉर्मल है, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोर निपल्स जनरली लैच की वजह से होते हैं। अगर आपके बेबी का लैच सही है तो आपको सोर निपल्स नहीं होंगे। लेकिन सोर निपल्स की बेस्ट रेमेडी है अगर आपका लैच आप ठीक कर दीजिए, एंड सेकेंडली आप अपना खुद का ब्रेस्ट मिल्क लगाइए। मोस्ट मदर्स ये पूछती हैं कि कौन सी क्रीम लगाओ, एंड फैंसी क्रीम्स ले आते हैं, ले आ सकते हो, आई डोंट माइंड, बट लेकिन बेस्ट रेमेडी इज आपका खुद का ब्रेस्ट मिल्क, विच इज कंप्लीटली सेफ फॉर द बेबी, इट इज एंटी इन्फेक्टिव एंड इट इज रिच इन फैट्स ऑल्सो, सो उससे हीलिंग जल्दी हो जाती है। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे बहुत सारी नालियां हैं, तो जैसे मिल्क नीचे उतरता है आपको टिंगलिंग फील होता है, तो ये भी नॉर्मल फीलिंग है। ऐसे लगता है कि छोटी छोटी जैसे एंड्स आपके ब्रेस्ट में रेंग रही है, विच इज नेचुरल। ब्रेस्ट में लम्प्स कभी कभी हो सकते हैं, तो मेरी रेकमेंडेशन तो यही है कि आपको रोज जब भी आप स्नान करते हो हल्के हाथ से अपने ब्रेस्ट को इस तरह से मसाज कर देना चाहिए, हल्के हाथ से, और फिर जेंटली स्ट्रोक्स टुवर्ड्स द निपल विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, राइट? अगर आपने इस लम्प्स को रहने दिया, आप अच्छा ठीक है कल करेंगे, परसों करेंगे, देखेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, एंड ब्रेस्ट इन्फेक्शन कैन लीड टू एंटीबायोटिक्स एंड इन सम केसेस इवन अ माइनर सर्जरी। अगर हमारी बात वहां तक पहुंच जाती है तो कई बार क्या है, ब्रेस्ट मिल्क को बंद करना पड़ता है, वी हैव टू ड्राई अप द ब्रेस्ट मिल्क, तो आपके बहुत नेगेटिव्स हो जाते हैं इसमें, बेबी का भी डिसएडवांटेज है, तो प्लीज बी अलर्ट एंड अवेयर ऑफ लम्प्स। अब ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मली पेरेंट्स पूछते हैं कि मिल्क सिक्रीशन कब स्टार्ट होगा। जो शुरू शुरू में मिल्क आता है उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम। ये कभी कभी येलो रहता है, थोड़ा कभी कभी क्लियर भी रहता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एंड इट इज ऑल्सो एक्चुअली अ लैक्सेटिव। इससे बेबी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लियर हो जाता है, तो बेबी हैज नॉट पास्ड एनी स्टूल्स ना, आपके टमी के अंदर दे हैव नॉट पास्ड एनी मोशंस, तो ये जो सिस्टम है पूरा फर्स्ट 1 or 2 डेज में कोलोस्ट्रम की वजह से क्लियर हो जाता है। फिर स्लोली ये मिल्क व्हाइट कलर का बन जाता है, बाय द 3rd, 4th, 5th डे तो हम बोलते हैं कि ये मैच्योर मिल्क है। जितना आप ज्यादा फीड करोगे इतना ज्यादा जल्दी आपका मिल्क आ जाएगा। सिजेरियन सेक्शन में थोड़ा टाइम लगता है, बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द सर्जरी और द सर्जरी मेडिकेशंस। ये इसलिए होता है क्योंकि आप उठ करके नहीं बैठ रहे हो, सो यू आर नॉट फीडिंग ऑफन इन द फर्स्ट डे, सो इसके लिए समटाइम्स द मिल्क प्रोडक्शन कैन गेट लिटिल डिलेड, बट अगर आपके पास नर्सेस है, स्टाफ है जो आपको हेल्प कर सकता है, सो प्लीज टेक हेल्प, एंड इन अ सिजेरियन सेक्शन ऑल्सो आप लेटे लेटे बेबी को फीड कर सकते हैं। 2 चीजों की बात हम जनरली सुनते हैं, फॉर मिल्क और हाइंड मिल्क। फॉर मिल्क वो मिल्क है जो फीड के शुरुआत में आता है, फॉर द फर्स्ट 3 to 5 मिनट्स। ये बहुत पतला होता है, थोड़ा ब्लूइश होता है, ये कैलोरीज और फैट में कम रहता है, एंड शुगर्स और कार्ब्स में थोड़ा हाई रहता है। एंड जैसे जैसे बेबी नर्स करता है 3 to 5 मिनट्स के बाद हाइंड मिल्क आता है, ये इसको बोलते हैं जो मिल्क पीछे से आता है, द बिहाइंड मिल्क, और इसमें फैट्स ज्यादा रहते हैं। अगर आप साइज घड़ी घड़ी जल्दी जल्दी स्विच करेंगे या बेबी को लेस देन 5-7 मिनट्स फीड करेंगे, सो बेबी को फॉर मिल्क ज्यादा मिलेगा, एंड इसमें बेबी का वेट गेन थोड़ा स्लो रहेगा। रेकमेंडेशन यही रहती है कि पहले आप अपने एक ब्रेस्ट को एम्प्टी करें, एंड उसके बाद ही आप सेकेंड ब्रेस्ट पे स्विच करें। So that is what is going to help your milk production to be proper and your baby to get the right combination of fore milk and hind milk. अब एक ब्रेस्ट पे फीड करना है या 2 ब्रेस्ट पे फीड करना है, ये हो सकता है कि बेबी एक ब्रेस्ट पे फीड करके
सो जाए and doesn't want to wake up. आप कोशिश करिए, try to wake up the baby and feed the baby at the second breast. But there is no जबरदस्ती, there is no force. अगर बेबी फुल है तो वो शायद सेकंड ब्रेस्ट पे फीड ना करना चाहे. अगर बेबी ने फर्स्ट साइड पे फीड किया और सेकंड साइड पे नहीं फीड किया, तो आप जब नेक्स्ट फीड शुरू करोगे आप सेकंड साइड से शुरू करेंगे, राइट? अगर आपके बेबी ने फर्स्ट साइड भी लिया और सेकंड साइड भी लिया, तो सेकंड टाइम जब आप फीड शुरू करोगे आप फिर भी सेकंड साइड से ही शुरू करोगे, क्योंकि फर्स्ट साइड पे ज्यादा फीड लिया गया है और सेकंड साइड वाज ओनली लाइक अ डेजर्ट. So you should always feed from the breast, which is more heavier when you start again. General mothers का ये standard question है, is my baby getting enough? Yes. इन चीजों का आपको ध्यान देना. In the first 3 months, baby को 10 to 12 times 24 hours में feed मिलना चाहिए. Baby is generally alert, content and is gaining weight. आपके breast feeding के बाद lighter feel करते हैं, softer feel करते हैं. After third or fourth day, baby के जो nappies है, minimum 6 to 7 really wet nappies, मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं और really wet nappies. हम यूरिन काउंट कर रहे हैं, हम स्टूल्स को नहीं काउंट करते. एक ब्रेस्ट पे करीबन 10 से 20 मिनट आपको फीड करना चाहिए ताकि फोर मिल्क हाइंड मिल्क का बैलेंस सही हो जाए. फर्स्ट 6 months द WHO का रिकमेंडेशन है कि आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि बाहर का कुछ नहीं देना है, खास करके गाय का दूध, भैंस का दूध और कोई और जानवर का दूध बिल्कुल नहीं देना है. फर्स्ट 6 months आपको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क देना है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं देना है. उसके बाद 6 months to 1 year आप कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो. आपके डॉक्टर या कोई भी न्यूट्रिशन काउंसलर जो बच्चों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, उनकी गाइडेंस लेके 10 लोगों की बातें सुनकर नहीं, क्योंकि अगेन जब वीनिंग होता है, फूड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, तो यू शुड इंट्रोड्यूस इट स्लोली. सेकेंड ईयर जो होता है बेबी के लाइफ का, वो आपकी चॉइस है. WHO की रिकमेंडेशन तो यही है कि यू शुड कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग इनटू द सेकेंड ईयर आल्सो, बट इट डिपेंड्स, इट इज द मदर एंड बेबीज चॉइस. कितना जल्दी शुरू करना चाहिए? The sooner the better, right? As soon as the baby is born and the baby can latch on. राइट? उसके बाद बेबी बहुत अच्छे से सो जाते हैं. अगर आपकी हॉस्पिटल अलाउ करती है तो बेबी शुड बी रूमिंग इन विथ यू. ये ऑप्शन आपको लेना चाहिए. पुराने मतलब जो 20-25 साल पहले नर्सरीज का कॉन्सेप्ट वाज वेरी पॉपुलर, बट अभी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया है. यू शुड हैव द बेबी विथ यू. इसमें थोड़ी आपकी नींद कम होगी, थोड़ा आपको मेहनत ज्यादा होगी, बट इससे आप अपने बेबी के साथ अच्छे से अक्वेंट हो जाओगे. यू विल लर्न योर बेबी साइंस, क्यूज एटसेट्रा, एंड यू विल फील अ लिटिल बिट मोर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर गोइंग होम विद द बेबी. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank. Cord Life. One chance, one choice. एंड आज का सबसे स्पेशल आइटम ऑन द एजेंडा इज आपका गिफ्ट वाउचर. सो लाइफ एंड परस्यूट्स एंड कॉर्ड लाइफ की तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट वाउचर है. लाइफ एंड परस्यूट्स प्रोडक्ट्स के लिए ये एक ब्रांड है जो ऑर्गेनिक और नेचुरल वेलनेस एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाता है मदर और बेबीज के लिए. तो अगर आप बेबी मसाज ऑयल या मदर के लिए बॉडी वॉश या कोई भी ऐसी क्रीम वगैरह लेना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक है, जो सेफ है, जो प्रिजर्वेटिव फ्री है, तो आप ये वाउचर यूज करके शॉपिंग जरूर करिएगा. तो सेशन के बाद अराउंड 48 to 72 आवर्स में कॉर्ड लाइफ की कोई भी टीम मेंबर आपके साथ टच में रहेंगे
और आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग एज वेल एज ये वाउचर शेयर करेंगे. सो यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो. उस टाइम पे अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन भी बुक करना चाहते हो तो यू कैन बुक योर प्रेजेंटेशन. एज सुमित ने आपको बताया ये प्रेजेंटेशन आपके लिए फ्री है, सो इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस ओनली. सो आप एक प्रेजेंटेशन लेके यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट द स्टेम सेल बैंकिंग एंड हाउ whether it is suitable for you and your family. ये कुछ बुक्स हैं which are written by me, they are in the market. आप ये Amazon से परचेज कर सकते हैं. The first is prenatal fitness, which is all about pregnancy exercises and postnatal exercises. Pictures और explanations के साथ हर पेज पे एक exercise है with a picture and an explanation, along with diet plans, exercise charts. So it's a good book for all pregnant mothers. Parenting mantras is for after delivery. नहीं, mantras chants नहीं है, but it is all about simple solutions for everyday parenting concerns. जैसे breastfeeding है, feeding है, toilet training है, sleep training है, इन सब के tips इस book में आपको मिल जाएंगे. And जब आपके babies खाना खाना चालू करते हैं, weaning शुरू करते हैं, so then you have the Super Moms recipes book. So please check them out on Amazon today. We are now ready for your questions. उससे पहले मैंने स्क्रीन पे अपने कोऑर्डिनेट्स डाल दिए हैं. So my website address, Facebook or Instagram handle. A lot of fun stuff happening nowadays. Instagram has got a lot of more interactive elements. So we do some contests, questions, polls, videos, reels, बहुत सारे कुछ. So make sure that you follow. I have a YouTube channel also, which is called The Pregnancy Coach by Baby 360 Degrees. And अगर आप प्रेगनेंसी की फ्री टिप चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिए. माय स्टाफ विल ऐड यू टू आवर फ्री टिप्स ग्रुप फॉर अ डेली प्रेगनेंसी टिप. एंड ये कॉड लाइफ के नंबर्स हैं जो स्क्रीन पर है. इट हैज द कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर, अ टोल फ्री नंबर एंड SMS नंबर. तो ये नंबर्स आप जरूर नोट कर दीजिए क्योंकि आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है. तो आप टीम के साथ टच में रह सकते हैं. तो नंबर्स को प्लीज आप नोट कर लीजिए. ऑल राइट. सो एक क्वेश्चन है जो मेरा क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर सुमित इज आल्सो हियर, सो ही विल आंसर द क्वेश्चंस ऑन स्टेम सेल बैंकिंग. सो पहला क्वेश्चन जो मेरे लिए है इज व्हेन शुड वी स्टार्ट डूइंग दीज एक्सरसाइजेस. जैसे मैंने आपको बताया, आपको डॉक्टर से पूछ करके स्टार्ट करना है. एंड प्रेफरेबली आपका जो फर्स्ट स्कैन है, जो 12th वीक पे फुल स्कैन होता है, जिससे प्लेसेंटा की पोजीशन, सर्विक्स की लेंथ, ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाते हैं. आप इसके बाद ये स्टार्ट कर सकते हैं. सो चेक विद योर डॉक्टर आफ्टर द फर्स्ट स्कैन जो 12th वीक में होता है. सुमित, आई एम गोइंग टू रीड योर क्वेश्चंस एज वेल. सो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाई शुड वी प्रेफर कॉड लाइफ over any other stem cell bank? Give me one single reason. All right. So there are multiple reasons why we should choose the Cord Life. But if you ask me one single reason, then the Cord Life is the only stem cells company in India which provides the total stem cells banking solutions. So this is the only stem cells company which is providing you the total stem cells banking solutions. Means you are getting the benefit of public banking and the private banking in the cost of just the private banking. So for knowing to know more about what is the total stem cells banking, I would request you to please book your presentation, book your free presentation. We will explain all the aspects, what is total stem cells banking, what are the benefits in this program. So this is the major advantage with the Cord Life, that we are providing the total stem cell banking solution. Thank you. Right. Over to Yeah, so next question again for you, Sumit. It's the same gentleman and he wants to know, can we preserve for another baby, not the baby expecting this time? So I don't know how you want to answer that one. All right, so this is a very good question. We discussed the success stories in the presentation while we were briefing about the stem cell banking. So if you had focused that there were some cases जहाँ पर खुद का sample भी use हुआ था and जहाँ पर siblings का sample use हुआ है. So these are the situations when we technically call the autologous cases or allogenic cases.
So yes, this is very important to preserve the baby sample, just because कि वो baby के लिए बहुत ज़्यादा useful है. It can be useful for other family members also, but yes, we want to give something for the baby. So first baby का अगर आपने sample preserve किया है, so I think second baby का भी sample preserve करना चाहिए, just for the baby only. Thank you. Okay, Sumit, you have one more question. At what point should I be contacting CordLife for stem cell preservation? Sorry, ma'am. Can you please repeat the question? At what time should I contact CordLife for stem cell presentation? You can take the presentation anytime during your 9 months pregnancy period. This is just an informatory presentation. You can collect all the relevant information, then you can take the decision. So anytime you can take the presentation. This can be given at your convenient time, according to your convenience. We can give the presentation at your home on the Google Meet or Zoom पर भी हम लोग provide कर सकते हैं meeting. As for your convenience, presentation can be arranged. So besides presentation, the parent wants to know that preservation के लिए अगर मुझे contract book करना है, तो when should I be doing? Anytime you can book the contract. Just the registration fees is payable at the time of registration. Rest any fees will be deducted after the delivery only. So whenever you take the decision, we provide you the collection kit also. So these are the formalities which can be done just before the deliveries. So if you are prepared, mentally prepared for the stem cell banking, so you can book the registration anytime. Okay. So there is a mother who is asking, do you provide an annual preserve report? Annual preserve report, I cannot understand the exact question, but yes, there is a provision of quality report which we provide annually. So this is provided on your email ID, on your registered email ID, जहाँ पर हम sample की quality report आपसे share करते हैं. Okay. Because what she's saying is that she got this done for the first baby 3.5 years ago, and she has not been getting a report every year. Ma'am, I think what you can do is you can share whether you have got it done through CordLife, and if there is any concern, I have already shared the phone numbers on the screen. You can get in touch with those numbers to speak to the team, and they will help you out if there has been something which has been missed out. Okay. Okay, so we have one more question from another mother who's saying that this is going to be my second delivery. So I want to know, will it be useful for both the babies? Yes, I shared this answer also earlier also, because there are two concepts. One is autologous cases and one is allogenic cases. Yes, sample of baby for himself is very important. So this is good to preserve the sample of both the babies, because वो हमारे baby को 100% protect कर रहा है. Okay. All right. So the mother who is saying वो annual preserve report के बारे में, she's saying it was with CordLife only. So ma'am, आप number जरूर note कर लीजिए, and our team will surely, Sumit will take care of it for you. Okay, what is the concern? Able to understand it better on a one-to-one rather than through this kind of a presentation. Okay, Sumit, next question for you. How many years can the stem cells be preserved? We have multiple options. You can preserve the sample for 21 years or 75 years. So this is your choice कि आप कौन से plan को opt करते हैं. Either you can go for 21 years or 75 years, कोई भी आप plan choose कर सकते हैं. Accordingly हम लोग उसमें registration formalities में mention करते हैं. तो stem cells की viability फिर इतने साल चलती है? I think that is what the concern is. So sample is preserved in -196 degrees centigrade. Whenever we preserve the sample in this temperature, so उसकी biological cycle एक तरीके से stop हो जाती है. Cells further ना ही deteriorate करेंगे, ना ही उनकी quality deteriorate होगी, right? So इसको हम अभी preserve कर सकते हैं certain time तक. Sample की quality पर कोई भी issue नहीं होगा, right?
ऑलराइट, पेरेंट्स आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज डाल दीजिए. सुमित इज ऑल्सो हियर रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज और ब्रेस्ट फीडिंग, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर इट फॉर यू. एंड अगर आप लोग सेशन के बारे में कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप अभी भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, और सेशन के बाद भी आपको एक फीडबैक का ऑप्शन मिलेगा. तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल है. इससे हमारी लर्निंग हो जाती है, सो वी कैन लर्न बेटर एंड टू सी हाउ अदर टॉपिक्स कैन बी अरेंज्ड फॉर यू एंड योर बेनिफिट. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप कॉड लाइफ टीम के साथ टच में रहे थ्रू द वेरियस सोशल मीडिया पेजेस एंड ऑल. तो फ्यूचर सेशंस के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. Sumit, you want to add anything? Some last minute words? Thank you so much, everyone, for joining this session. Thank you so much to Dr. Monica Wadhwan. And yes, thank you so much to Sonali ma'am for giving us for addressing this session. Thank you so much. Thank you. Thank you, Sumit. Thank you, parents. Have a great weekend. Stay safe, stay happy, and have a super healthy baby. Thank you. When is a parent born? When your world changes in a moment. Nani? Or when the moment is celebrated by all. When you start learning again. Or with a new role. Is it your child's first breath? Or is it just a feeling? Parents are born when they fulfill a responsibility. Your child's umbilical cord blood can provide protection from 80 life-threatening diseases. Keep it safe with Asia's largest stem cell bank, Cord Life. One chance, one choice.